এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, কিয়নো এইবাৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান হ'ব একগোট। হৰিদ্বাৰৰ ধৰ্ম সংসদৰ পাছত যি 20 লাখ মুছলমানক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল, তাৰ পাছতেই এইবাৰ মুছলমান ধৰ্ম সংসদ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু IMC প্ৰমুখ মৌলানা তৌকিৰ ৰাজা খানে এই কথা ঘোষণা কৰিছে, 20,000 মুছলমান হ'ব একগোট। এই মুহূৰ্তহে খবৰ জনাই আছো, বৰেলীত 20,000 মুছলমান একগোট হ'ব। এবাৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান একগোট হ'ব, কিয়নো মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য সহ্য কৰা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। হৰিদ্বাৰৰ যি ধৰ্ম সংসদ অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই ধৰ্ম সংসদৰ পাছত এইবাৰ মুছলমান ধৰ্ম সংসদ ঘোষণা কৰা হৈছে। মুছলমানক কৰা অপমানৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান হ'ব একগোট। আৰু এই ধৰ্ম সংসদৰ আলোচনা কৰিবলৈ 20,000 মুছলমান একগোট হ'ব জুম্মা নামাজৰ পাছত। 7 জানুৱাৰীত বৰেলীত অনুষ্ঠিত হ'ব মুছলিম ধৰ্ম সংসদ। আৰু মুছলিম ধৰ্ম সংসদ ঘোষণা হোৱাৰ পাছতেই মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। বৰেলীৰ ইছলামিয়া ময়দানত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান একগোট হ'ব। মৌলানা তৌকিৰ ৰাজা খানে ধৰ্ম সংসদ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে। আৰু হৰিদ্বাৰত যি 20 লাখ মুছলমানক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল, তাৰ পাছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে মুছলমান সমাজ। আৰু এইবাৰ মুছলমান সমাজে ধৰ্ম সংসদ ঘোষণা কৰিছে। মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য সহ্য কৰা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে IMC প্ৰমুখ তৌকিৰ ৰাজা খানে। ইছলাম ধৰ্ম সংসদৰ বাবে 20,000 মুছলমান ইছলামিয়া ময়দানত হ'ব একগোট। আৰু এই মুহূৰ্তহে খবৰ জনাই আছো যে হৰিদ্বাৰত যি ধৰ্ম সংসদ অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত যি 20 লাখ মুছলমানক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল, তাৰ পাছতে এইবাৰ মুছলমান ধৰ্ম সংসদ ঘোষণা কৰা হৈছে। বৰেলীত ইছলামিয়া ময়দানত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানক একগোট হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে। আৰু তাৰ পাছতে মন্তব্য কৰা হৈছে যে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ অপমানজনক মন্তব্য সহ্য কৰা নহ'ব। আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে জাগি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ মুছলিম লোক। আৰু এই হৰিদ্বাৰৰ ধৰ্ম সংসদৰ বিৰোধিতা কৰি এইবাৰ মুছলমান ধৰ্ম সংসদ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানক এই ধৰ্ম সংসদত ভাগ ল'বৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। কিন্তু 7 জানুৱাৰী তাৰিখে যিটো ধৰ্ম সংসদ ঘোষণা কৰা হৈছে, বৰেলী ইছলামিয়া ময়দানত 7 জানুৱাৰী তাৰিখে মুছলিম ধৰ্ম সংসদ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে IMC প্ৰমুখ তৌকিৰ ৰাজা খানে এই কথা ঘোষণা কৰিছে, মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য সহ্য কৰা নহ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে। যিহেতু ইছলাম ধৰ্ম সংসদৰ বাবে 20,000 মুছলমান ইছলামিয়া ময়দানত অতি শীঘ্ৰে একগোট হ'ব। জুম্মা নামাজৰ পাছত 20,000 মুছলমান একগোট হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। 7 জানুৱাৰী তাৰিখে বৰেলীত অনুষ্ঠিত হ'ব মুছলিম ধৰ্ম সংসদ। আৰু হৰিদ্বাৰৰ ধৰ্ম সংসদৰ পাছতে এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ হাতত এক মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য প্ৰথমতে আগবঢ়াইছো। बड़ी तकलीफ हमें इस बात की है कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की अदलिया बदनाम हो रही है, हमारे मुल्क की पुलिस और प्रशासन बदनाम हो रहा है, हमारा देश बदनाम हो रहा है। हम अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने जो 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है, उसमें हमारे उलमा का कहना यह है कि इस ऐलान से अगर उन्होंने अपने नौजवानों को इसके लिए आमादा किया है और उनके नौजवान इस काम के लिए निकलेंगे, तो जिसे कत्ल करने जाएंगे वो खामोशी से हाथ बांध के कत्ल तो नहीं हो जाएगा, फसाद होगा, दंगा होगा। और हम अपने मुल्क में किसी भी हालत में दंगा और फसाद नहीं होने देना चाहते। खाना जंगी, गृह युद्ध जैसी स्थिति अगर हमारे देश में बनती है तो ये हमारे लिए निहायत शर्म की बात है। वो तो देशद्रोही हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं है बल्कि सत्ता से और अपने मफाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन हम तकलीफ में रहकर, परेशानी में रहकर भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे उलमा ने इत्तिफाक राय से ये फैसला किया है
कि अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए, मुल्क को गृह युद्ध से बचाने के लिए, दंगे फसाद से, आतंकवाद से बचाने के लिए उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। आप हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि हुकूमत अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर हमारा चाहे तो कत्ल कराए, या सैनिक और अर्धसैनिक बल तमाम आपके ज़ेर हुक्म है, आप चाहे तो उन्हें हुक्म देकर हमारा कत्ल कराएं। लेकिन अब हम सब्र करने वाले नहीं हैं। मुल्क के अमन व अमान के लिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले जुमे को 7 जनवरी को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 20,000 मुसलमान स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे, और दावत दी जाती है, चाहे पुलिस को भेजकर, चाहे अर्धसैनिक बलों को भेजकर, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर, जिस तरह भी चाहे हुकूमत हमारा कत्ल करवा सकती है। हम उसके लिए किसी किस्म की कोई दाद और फरियाद भी नहीं करेंगे। और अगर उनकी प्यास खून से बुझती है तो उन्होंने 20 लाख का लक्ष्य रखा है, हम उन्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। हमारे उलमा ने ये फैसला किया है कि मुल्क में फसाद नहीं होने देना है। इसके लिए आसानी का और बेहतरी का रास्ता यह है कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, अपनी जानों की कुर्बानी दें। और हर जुमे को इंशाअल्लाह, पहला जुमा हमारा 7 जनवरी को पड़ रहा है, पहला जुमा हम 20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में, और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। हम हाथ बांधकर खड़े होंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, किसी किस्म का एहतजाज नहीं होगा। पूरी दुनिया को यह देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस किस्म का माहौल बनाया हुआ है इन आतंकवादियों ने, जो हमारे ऊपर आतंकवाद का इल्जाम लगाते हैं। असल में आतंकवादी यही हैं। हुकूमत ये कहती है कि हमारे शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि असल दंगा ही तुम ही थे, तुम ही दंगा कराते थे। आज तुम हुकूमत में हो इसलिए दंगा नहीं होता है। तुम जिस दिन हुकूमत में नहीं रहोगे फिर दंगे कराओगे। पहले खुद करते थे, अभी अपने गुंडों से तुम इस किस्म का माहौल बनवा रहे हो और दंगे फसाद करवाना चाहते हो। इसलिए आने वाली 7 जनवरी को जुमे की नमाज इंशाअल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में 20,000 हमारे नौजवान मुसलमान नमाज अदा करेंगे। और नमाज के बाद हम दावत देते हैं, हमारे देश की एकता और अखंडता को जो लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं, हम त्याग की भावना से, कुर्बानी की भावना से, अपने देश प्रेम की भावना से हम खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। और हर जुमे को इंशाअल्लाह ये 20,000 नौजवान हर जिले में, इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में बरेली में भी लगातार, और उसके बाद दूसरे अजला में भी इंशाअल्लाह हर जुमे को 20,000 मुसलमान जमा होंगे, जो उन लोगों को दावत देंगे कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। 20,000 মুছলমান ইছলামিয়া ময়দানত জমা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে, স্পষ্ট ৰূপে মন্তব্য কৰিছে। এবাৰ হৰিদ্বাৰৰ ধৰ্ম সংসদৰ পাছত মুছলমান ধৰ্ম সংসদ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু 7 জানুৱাৰী তাৰিখে বাৰেলিত অনুষ্ঠিত হ'ব মুছলিম ধৰ্ম সংসদ। মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য সহ্য কৰা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে, আৰু যাৰ বাবে একত্ৰিত হ'ব হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোক।